Hello students, in my last video, I have taught you how to write a story. What should be the elements of story, what is the plot of the story, how you should start your story with the exposition, then there should be the rising action, climax, falling action, resolution, everything. And then I decided, why not write one story myself, where all the elements of story are there as well as there should be some moral. But instead of moral, I try to clear your doubts, your grammar doubts about subject verb agreement. So the title of the story goes Subject Verb Agreement. Hello everyone, welcome to RJ Learning Fun. Here, learning is always fun. Once upon a time, far away in the northern Himalayas was a city named Ekadupur. And in that city lived single common naming words called nouns. Yes, there were nouns everywhere. All the persons, places, animals or things were called nouns. But they were single common nouns. So all the nouns were one in number. One father, one mother, one baby, very crazy. One rose under the nose. One fish in a dish. One fox in the box. One dog on a log. One cat in a hat, one monkey playing with Donkey. So all the naming words, सब nouns जो थे वो सब नंबर में एक थे. Although they were single, but they were living very happily. और उनका एक ही सपना था, to find the sentence and be its subject. Yes, सपना था नेमिंग वर्ड्स का कि कहीं से कैसे भी करके सेंटेंसिटी मिल जाए और हम उसके सब्जेक्ट बन जाए. बट एज द सेइंग गोज, ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू. तो जब तक आप अपने सपनों पे काम नहीं करेंगे तब तक सपने पूरे नहीं होंगे. तो इसलिए एक दिन सुबह सब नाउन्स ने डिसाइड किया कि भाई अब हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से सेंटेंसिटी को ढूंढेंगे. लेकिन टास्क इतना आसान नहीं था. एक तो नॉर्दर्न हिमालयस थे, पूरी बर्फ थी, लैंड कवर विद स्नो था, वेदर भी अच्छा नहीं था. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि देयर वर नो शूज. यस, नोबडी वोर शूज. वहाँ पे शूज था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि शूज क्या होते हैं. तो बिना शूज़ के इतने बर्फ़ पे चलना बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए. बट फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो सेंटेंसिटी ढूंढना है, मतलब ढूंढना है. तो 4 टीम्स बनाई गई. 1 टीम वेंट टू द ईस्ट डायरेक्शन, 1 टू द वेस्ट, 1 टू द नॉर्थ एंड 1 टू द साउथ. तो चारों डायरेक्शंस में अलग अलग टीम भेजी और बोला कि चलो भाई सब जो है सेंटेंसिटी को ढूंढना, जैसे भी करके ढूंढना, और एक एक ड्रम ले जाओ. जिसको भी सेंटेंसिटी मिल जाएगी दैट टीम विल स्टार्ट बीटिंग द ड्रम और सबको पता लग जाएगा कि भाई सेंटेंसिटी इस डायरेक्शन में एंड अदर टीम्स विल कम टू दैट डायरेक्शन. तो सबने जाना ढूंढना शुरू कर दिया. कोई बर्फ में कूद के ढूंढ रहा है, कोई पानी में कूद के ढूंढ रहा है, कोई ऊपर पीक्स पे जाके देख रहा है कि कहाँ पर है सेंटेंसिटी, कहाँ नहीं है, किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली. लेकिन जो टीम साउथ डायरेक्शन में गई थी वो भी जाते 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 उसको एक ऐसा नज़ारा दिखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई. भाई क्या देख लिया, आपको पता है क्या दिखा? सेंटेंसिटी दिखी क्या उनको? नहीं, उनको दिख गए शूज. यस, शूज मिल गए उनको और उन्होंने कहा ये क्या चीज है भाई? तो उसमें लिखा हुआ था वियर मी ऑन योर फीट. So there were 4 types of S brand shoes. Type number 1, VES shoes. And instruction was written, I will fit into the words ending in fur sound but take off your fur sound first. Type 2, IES brand. I will fit into the nouns ending with consonant plus Y but first remove your Y. Type 3, ES brand. I will fit into the nouns ending in sh, ch and s sound. Don't remove any letter. Type 4, S brand. I am the most common one. Rest of the nouns can wear me. So the thief removed its F and tried VES brand shoes and the thief became thieves. The knife removed it FE and became knives. The baby removed its Y and tried IES brand shoes and the baby became babies. The city became cities and Lily became lilies. Then came forward the glass and class, a dish and a fish, a bunch and a church, and box and fox. They all wore ES brand shoes and class became classes, glass became glasses,
Dish was now dishes and fish was now fishes. The bunch turned into bunches and church turned into churches. The box became boxes and fox became foxes. And last but not least was the S brand shoes. The remaining nouns ran to wear the S brand shoes and they were the most comfortable one. So fathers and mothers, cats and hats, logs and dogs and roses and noses, etc., etc., etc. The list is very long. Boom! But what magic happened? As soon as the nouns wore that S brand shoes, a power came into them and they started increasing in number. The single noun became the many nouns and they called themselves, now we have the power, so we have become the plural nouns. So all the single nouns became now plural nouns as they were more in numbers and very powerful. अब जैसे ही उनके पास पावर आई, with power came the pride. अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब तो हमारा इतना सारा नंबर हो गया है, हम इतने पावरफुल हो गए, अब हमें बाकी टीम्स की तो ज़रूरत है नहीं है जो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में गई हुई हैं. अब ये पूरा हिमालयाज़, पूरा ये नॉर्थ हिमालयाज़ हमारा है, यहाँ पे सिर्फ हम रहेंगे ताकि जब सेंटेंसिटी मिले तो सिर्फ हम ही वहाँ पे जाएंगे और कोई नहीं जाएगा. एंड दे स्टार्ट बीटिंग द ड्रम एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द सिटी. एकमपुर की तरफ उन्होंने भागना शुरू कर दिया और ड्रम बीट करना शुरू कर दिया. सब जितनी डायरेक्शंस में बाकी टीम थी उन सबको लगा शायद इनको एक सिटी मिल गई है, सेंटेंसिटी मिल गई है, तो सब उस ड्रम की डायरेक्शंस में, साउंड की डायरेक्शन में सब ने भागना शुरू कर दिया. एंड जैसे ही वो सब सिटी के सेंटर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो इतने सारे साउथ टीम के तो नंबर ही इतना सारा इंक्रीज हो गए एंड ऑल ऑफ देम आर वियरिंग सम वेरी स्ट्रॉन्ग शूज. अब वहाँ पर उन्होंने प्लूरल्स नाउन्स से बोला सिंगल नाउन्स को कि भाई अब वी हैव द पावर, नाउ यू ऑल गो फ्रॉम हियर. अब आप सब यहाँ से जाओ, अब यहाँ पे सिर्फ हमारा राज रहेगा, सेंटेंसिटी जब भी मिलेगी तो उसमें सिर्फ हम ही जाएंगे, प्लूरल नाउन्स आप तो नहीं जाओगे, बिल्कुल सिंगल नाउन्स. अब सिंगल नाउन तो बहुत सैड हो गए कि भाई अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे. उन्होंने मना कर दिया कि भाई एकम सिटी हमारा भी घर है, वी कैन नॉट लीव आवर होम. तो वो तो अड़ गए. उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप आराम से नहीं जाओगे तो हम तो आपको मार मार के भगा देंगे, यू विल हैव टू हैव अ फाइट विद अस, कि आप चलो आ जाओ हमारे साथ बैटल करो, जो जीतेगा वो यहाँ रहेगा. सिंगल नाउन्स को पता था कि भाई उनकी पावर तो कम है, जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन लड़े बिना हार भी नहीं मानना चाहते थे. तो उन्होंने बोला ठीक है, कल मॉर्निंग में हम फाइट रखते हैं, जो जीतेगा वो यहाँ रहेगा, जो नहीं जीतेगा वो चला जाएगा यहाँ से. तो नेक्स्ट डे जो है बैटल सेट हो गई. एक तरफ थे सारे सिंगल नाउन्स और एक तरफ थे सारे प्लूरल नाउन्स. अब जब फाइट शुरू हुई तो ऑब्वियसली सिंगल नाउन्स का तो नंबर कम था और उनके पास तो पावरफुल शूज थे प्लूरल नाउन्स के पास. उन्होंने तो दे स्टार्ट किकिंग द सिंगल नाउन्स को, जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, उनको बीट करना शुरू कर दिया एंड स्टार्टेड थ्रोइंग देम ऑफ द माउंटेन, और उनको माउंटेन से नीचे फेंकना शुरू कर दिया. अब सब जो सिंगल नाउन्स थे, उनका जो लीडर था उसके पास गए कि भाई हम ऐसे तो हम बिल्कुल मर जाएंगे, तो हमें फेंकते जा रहे हैं नीचे माउंटेन से, किक करते जा रहे हैं, अपने एस ब्रांड शूज से किक कर रहे हैं, VS वाला क्लिक कर रहा है, ES वाला कर रहा है, IES वाला कर रहा है, हम तो सब गिर जाएंगे. तो उन सब ने कहा कि देखो हमारे गॉड सन है, तो वी शुड प्रे टू गॉड, हमें सन गॉड से प्रेयर करनी चाहिए एंड ओनली नाउ ही कैन हेल्प अस. तो सब ने प्रेयर की सन गॉड को कि भाई प्लीज हेल्प अस, हेल्प अस. तो उसी समय जो है सूर्य देवता, सन गॉड जो है वहाँ प्रकट हुए. उन्होंने बोला कि डोंट वरी, ऑल ऑफ यू विल हैव माय नेम एस. अब आज से आप सब कहलाएंगे सिंगुलर नाउन्स. तो मेरी एस की पावर आप सबके साथ रहेगी और आपको कुछ नहीं होगा. और सन ने अपनी जो रेज है, अपनी गोल्डन, येलो, ऑरेंज रेज उन सब की तरफ फैला दी और जितने भी नाउन्स माउंटेन से गिरे थे उन सब ने सन की रेस को पकड़ा और आराम से धीरे 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 माउंटेन से नीचे दे स्टार्टेड लैंडिंग. और नीचे क्या थी, बहुत सुंदर ग्रीन वैली थी. उस ग्रीन वैली में रहते थे वर्ब्स, 2 टाइप ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स. तो अब जैसे ही सारे सिंगुलर नाउन्स उस वैली में, वर्ब की वैलीज में गिरे और जोर से दे वर क्राइंग कि भाई हमारा घर छूट गया, हम अलग हो गए अपने घर से, दे स्टार्टेड क्राइंग. और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब ने उन लोगों की आवाज सुनी और दे स्टार्टेड रनिंग टू द सिंगुलर नाउन्स. तो सारे हेल्पिंग वर्ब्स ने सिंगुलर नाउन्स को उठाया और मेन वर्ब के पास ले गए. तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन्स को लेकर मेन वर्ब के पास गए और सारी बात मेन वर्ब ने सुनी, उसी समय मेन वर्ब ने ऑर्डर दिया, हेल्पिंग वर्ब्स विद द पावर ऑफ एस कम फॉरवर्ड.
तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब थे जिनके पास एस की पावर थी वो सब आगे आ गए। तो जानते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन थे? इज, वॉज, हैज, डज। यस, ये चारों हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस की पावर है वो आए सामने। और मेन वर्ब ने कहा अब ये चारों हेल्पिंग वर्ब विद द पावर ऑफ एस दे विल गो विद यू। और हम भी मेन वर्ब भी अपने साथ एस की पावर लगाकर आपके साथ चलेंगे। तो इस तरह से सिंगुलर नाउन के साथ खड़े हो गए हेल्पिंग वर्ब विद द पावर ऑफ एस। एंड दिस वे नाउ द मैन इज हैप्पी, द चाइल्ड इज हैप्पी, द गर्ल हैज अ डॉल एंड बॉय हैज अ बॉल, द पैरेट वॉज टॉकिंग एंड लायन वॉज वॉकिंग, द स्टूडेंट डज वर्क एंड ड्राइवर ड्राइव्स ट्रक। जैसे ही नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आए they entered into the sentence-city. Yes, वो sentence-city जिसको वो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, जो उनका ड्रीम था। जैसे ही nouns को verb मिले, they became the sentences and now they are called the subjects of sentence-city. In the sentence, the child is happy, the child is subject. The girl has a doll, the girl is subject. Parrot was talking, parrot is subject. Now, as soon as the news of singular nouns finding the sentence-city reached the plural nouns, they realized what blunder they have done. उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है singular nouns को ऐसे नीचे फेंक कर। And then they prayed the sun god and asked for forgiveness. Sun god आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई है तो I can help you out. I can help you to land safely in the verb valley. लेकिन वहां जाकर आपको singular noun से ही माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो आपको माफ कर देंगे then you can go to the sentence-city. तो plural nouns सब जो है वो they took the rays of the sun and they all landed in the verb valley. and वहाँ पर जाकर उन्होंने singular noun से सॉरी बोला कि भाई हमने अपने जो s पावरफुल शूज थे उनका बहुत गलत यूज किया है और आप सबको यहाँ किया है, तो प्लीज अब आप हमें माफ कर दो। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू द सेंटेंसिटी विद यू, बट टू गो टू द सेंटेंसिटी द प्लूरल नाउन्स नीड वर्ब्स। तो फिर वर्ब्स के पास गए, उन्होंने वर्ब से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हमें भी कुछ हेल्पिंग वर्ब दो साथ में मेन वर्ब, सो दैट वी कैन ऑल्सो गो टू द सेंटेंसिटी। सो आर, वर, हैव एंड डू, these four helping verbs were assigned the duty to go with plural nouns. So this way now the leaves are green, cities are clean. Thieves were caught and boxes were bought. Fathers have hats and mothers have cats. Monkeys sway and donkeys bray. तरह से subject और verb में ये agreement हुआ that in any sentence if the subject is singular, मतलब सिंगुलर नाउन या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट हैं, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है या यू, वी, दे प्रोनाउन है सब्जेक्ट की प्लेस पर, देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। जैसे कि अब आप सबको पता है कि वो वर्ब जिनके पीछे एस की पावर है, यानी कि इज, वॉज, हैज़ एंड डज, दे आर कॉल्ड सिंगुलर वर्ब्स and they will always protect the singular subjects. My next video is on worksheet of subject verb agreement. So dear students, ये story भूलना नहीं, तभी आपको worksheet करने में मज़ा आएगा. And one more thing, singular nouns को plural में कैसे change करना है, इसके लिए मैंने एक separate video बनाई हुई है. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसकी भी वीडियो बनाई हुई है. इन दोनों वीडियोस के लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देख लेना, बिकॉज व्हेन वी विल बी डूइंग द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्कशीट इट विल हेल्प यू अ लॉट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय फॉर नाउ. लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर देना. और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस कहानी का क्लाइमेक्स कौन सा लगा. तो जल्दी ही आ रही हूँ आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन, बाय, टेक केयर.